Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. We are really sorry to have to tell you that we could not provide you with the beginning parts of this program because the cameraman did not do his duty honestly. He came too late and destroyed our whole panning. The program started with the recitation of the Holy Quran by Brother Sauban Ahmad Sanabili. After that, we welcomed our guests with a boutique, and after that, we invited Brother Mahmoud to give the introduction of the book. We are providing you with whatever we can arrange. Completely different from those books in various aspects. Some of these are as follows. Number one, this book is not just a book but a complete course for English language learners which covers the important things according to their needs. These include grammar, English text reading, comprehension practice, translation practice, and basic sentences related to conversation. And of course, these things are of great importance for a student. However, if we compare other books, the other books are either just grammar or just colloquial. In this case, 3 separate books will be required for one student. One of the grammar, the second one of colloquialism, and the third of word and meanings. While this book, Golden English, contains all these things, it's just that the author has divided the content according to the level of students, and this is the greatest feature of this book. And another great quality of this book is that it has arranged things step by step, and all the things are arranged according to the separate lessons so that the reader can learn all the things one by one. It is as if an attempt has been made to spread the words like a string of pearls, suggesting that one learns only a certain amount each day, making it easier for the learner. However, this aspect has not been addressed in other books. In those books, subjects are often divided into chapters with all the related information covered in a single chapter. Consequently, beginner students face the challenge of determining how much to study in a day and how much to cover in a session. In contrast, this book meticulously outlines the daily reading and study requirements, providing clear guidance for learners. And the third quality of this book is that it takes complete care of the quality of the learner and only mentions what they need. An example of this is that in the lesson of parts of speech, in the first part of this book, only their definitions and examples have been mentioned, but more details have been mentioned in the second part of this book. Ladies and gentlemen, certainly let's refine the statement. For our basic students, it's essential to grasp the fundamental knowledge of the discussion without delving into the various types, as deep exploration may lead to high-level complexities. And one of the great features of this book is that each lesson in it has been recorded and uploaded to YouTube, where learners can watch all the lessons for free as their convenience and need. It should be noted that the name of this YouTube channel is English with Habib Riaz. These are some of the important features of this book that make this book stand out from other books and also make book much more beneficial for the learner. Apart from these reasons, you will see other qualities therein, inshallah.
You just need to use it, so it is requested you make use of it yourself and share this book with others. Dear audience, the book and the author have been honored and appreciated by many professors, teachers, readers and students. Some of them are Professor Muhammad Ayyub Nadwi, Professor of Arabic Department, Jamia Millia Islamia. He said that Mr. Habibur Rahman's meticulously crafted English grammar book, born out of his experience teaching madrasa students, serves as a valuable resource for beginners and those with varying level of proficiency. Structured to accommodate users of all backgrounds, it covers essential language components from basic vocabulary to journalistic terms, facilitating comprehension and practical application, addressing grammar, intricacies, particularly prepositions and essay writing. It aids exam preparation and fosters confidence. And Dr. Asmat Jahan, as Associate Professor of English Department, Jamia Millia Islamia, she said that Habib Riaz Golden English all in all stands as a commendable effort providing a comprehensive resource for English language learners at various proficiency level. So, at the last of this introduction of this book, I would say that Golden English is a rare book of learning English language prepared in Urdu, which tries to collect all the essentials related to English. This book is designed to be used by both the reader and the teacher. This book has been prepared by teaching the students of madrasas and understanding their mind and considering their needs. This book, Golden English, will prove to be a rare gift, especially for female women in villages who may face barriers in learning English due to the cultural constraints, lack of access to schools in their area, or financial constraints preventing them from attending such courses. So thank you so much. Have a good day. Assalamu alaikum. Thank you, Mahmoud. Let me have a brief introduction about the author. Mr. Habib Riaz, studying at Jamia Millia Islamia, he's the brains behind Lingo Server and has created awesome English courses like Golden English Beginners Level. Plus, he has made learning Urdu and English and Arabic a breeze. Let's give him a big applause. Now, I would like to invite the author to officially launch his book, Golden English Intermediate Level 2. I'm inviting the author, Habib Riaz, to officially launch his book, Golden English Intermediate Level 2. I would like to invite our guests and teachers, please join us on the stage to officially launch Golden English Intermediate Level 2 and discover its key features and importance. Pleasure to invite our chief guest, Professor Muhammad Ayyub Nadwi, on stage. We're looking forward to hear your insights. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think I should speak in Urdu. Okay. स्टेज पर मौजूद प्रोफेसरान हज़रात उलमाए किराम और सामीन किराम, गोल्डन इंग्लिश की पहली तकरीब दो 2023 में जब हुई तो मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, हिंदुस्तान से बाहर था। हबीब रियाज़ ने मुझे मैसेज किया था तो, और इस मौके पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस वजह से कि मैं BA सेकेंड ईयर में
ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ और काफ़ी वक्त से कई बैचेस निकले हैं जो ट्रांसलेशन पढ़ते थे मुझसे, और ट्रांसलेशन भी अरबी अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी अरबी। तो जब मैं बीए सेकेंड ईयर में ट्रांसलेशन पढ़ाता था और हबीब रियाज़ स्टूडेंट थे, तो जो चंद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर लेते हैं उनमें से एक हबीब रियाज़ थे। इसलिए क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो हम ग्रामर की रोशनी में, क़वाइद की रोशनी में ट्रांसलेशन करवाते हैं। हमारे तलबा की अक्सरियत मदरसों से आई हुई होती है और मदरसे के तलबा मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि उनको अंग्रेज़ी कम आती है, हालांकि गैर मदरसे वालों से ज़्यादा अंग्रेज़ी उनकी अच्छी होती है। और लेकिन उनको, मुझे महसूस होता है कि उनको एक तरह का फ़ोबिया होता है कि मुझे अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती है। और जो स्कूल से बच्चे आते हैं, चूँकि उनको बोलने का ज़्यादा माहौल होता है स्कूल्स में, तो बोलते ज़्यादा हैं लेकिन अच्छी अंग्रेज़ी लिख नहीं सकते वो लोग, बोलने में थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। तो इसलिए हमारे मदरसे के बच्चे ये समझते हैं कि हम अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं। तो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे, उसी वक्त से मुझे महसूस हुआ कि हबीब रियाज़ की तवज्जो किस तरफ है। ये बीच में मुझसे ग्रामर की चीज़ें डिस्कस करते थे और मैं ये सोचता था कि मदरसे के बच्चे हैं, हम बहला लेंगे ऐसे ही, लेकिन वो मुश्किल क्वेश्चन किया करते थे जिससे हमें भी डर लगने लगता था, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी बोलना तो आती है लेकिन क़वाइद इतने ज़्यादा नहीं आते। और मदरसे के बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होती है। बस ये है कि उनको एहसास ये होता है कि वो अंग्रेज़ी में कमज़ोर है। हमारे यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं, बल्कि चली गई यहाँ से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर के, प्रोफेसर बारा फारूकी। वो बयान करती हैं कि मदरसे के बच्चे जो बीए में एडमिशन लेते हैं, मुझे उलझन होती थी इनसे कि मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि इनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो जब भी मुझे इनका सब्जेक्ट दिया जाता था बीए ऑनर्स का पढ़ाने का, तो मैं मना कर देती थी हेड से, मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगी। लेकिन एक मरतबा 2-3 साल के बाद हेड ने इंसिस्ट किया कि आपको अब यही ग्रुप पढ़ाना है जो मदरसे का ग्रुप है। फिर वो बयान करती हैं कि जब मैंने मदरसे के ग्रुप को पढ़ाना शुरू किया, मेरा तजुर्बा बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने सोचा सबसे अच्छे तलबा यही हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती तलबा यही हैं, सबसे अच्छी अंग्रेज़ी भी इन्हीं की है। यहाँ तक कि फिर वो कहते हैं कि मैं आखिर तक कई साल तक यही मुतालबा करती रही, इसी बैच को पढ़ाऊँगी। तो इसकी रोशनी में हम कह सकते हैं हमारे बच्चे जो हैं, हमारे अरबिक के बच्चे, मदरसों के बच्चे अंग्रेज़ी में भी बहुत अच्छे होते हैं, लिखने में ख़ास तौर से, बोलने में हो सकता है कमी हो लेकिन लिखने में बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं। तो हबीब रियाज़ जब सेकेंड ईयर में थे, उसी वक्त से ये कुछ डिस्कस करते थे, दिखाते थे, और ट्रांसलेशन में भी जब हम पढ़ाते थे हमें अंदाज़ा होता था कि इनकी तवज्जो किस तरफ है, और उसी वक्त से ये इस किताब के लिखने में लगे थे। हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये इतने नुस्खों में ये किताब आ जाएगी, और अब ये दूसरा नुस्खा हमारे सामने है। और उस वक्त इन्होंने मुझसे कहा था कि इस किताब पर मुकदमा लिखिए। हमने अपनी तरफ से कुछ लिखा जो कुछ हमें उस वक्त समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने लिखा है वो तो बिल्कुल फिट है इस पर, और ये बहुत अच्छी किताब है। अब ये एमए में है और एमए में अरबिक में है, और तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो अरबिक में पढ़ाए जाते हैं, अरबी ही बोलचाल है, उसके बावजूद ये अंग्रेज़ी से लगे हुए हैं। तो मैं अपने नए तलबा को मशवरा दूंगा कि ये जो किताब है ये हकीकतन, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐसे तरीक़े इख्तियार किए हैं, एक तो बेसिक ग्रामर समझाया है, और आपको पता है कि अरबी में तो ग्रामर बहुत ही मजबूत होती है, हर चीज़ साइंटिफिक होती है, लेकिन अंग्रेज़ी में इस्तिस्नात बहुत ज़्यादा हैं। अंग्रेज़ी में क़वाइद इतने ज़्यादा ठीक ठाक नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी होते हैं। आपने ऐसे क्यों इस्तेमाल किया, ऐसे ही इस्तेमाल होता है। जैसे हमारी उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान में भी क़वाइद बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाता आदमी, तो इन्होंने इतने क़वाइद जमा किए हैं कि ये बड़ा काम है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो ज़बान सीखने के जो तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे आप डायलॉग इस्तेमाल करते हैं, हिवार इस्तेमाल करते हैं किसी लैंग्वेज को सिखाने में,
तो उस डायलॉग से हमें अंदाज़ा होता कि हमें क्या बोलना है, किस मौके पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कैसी ताबीर और इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें भी इसके अंदर हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ भी इसके अंदर हैं, क्योंकि कहानियों से इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है। बचपन में ही बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और ज़बान में महारत हासिल होती है। इसमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो बाकायदा लिटरेरी हैं, लेकिन बहुत ही आसान उसलूब में लिखी गई हैं, और ये अच्छे अच्छे मसादिर से ली गई हैं कहानियाँ हैं, और उनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है। तो इन्होंने उन सबको जमा किया है, उस बहाने जो है अंग्रेज़ी में लोगों को परफेक्ट किया जा सकता है। इस एतबार से भी ये किताब बहुत अच्छी है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस ये कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हबीब को कि उन्होंने ये इतना अच्छा काम किया है, और ये चलता रहेगा, ये लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान अभी काफ़ी वक्त तक चलेगी। इस पर भी ज़वाल आएगा, ज़ाहिर आपको पता है, इस पर भी ज़वाल आएगा, जैसे हर ज़बान पर आता है। मैं अपने स्टूडेंट कहता हूँ कि अमेरिकन इंग्लिश ने अंग्रेज़ी के लिए ज़वाल शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो रूल्स को तोड़ फोड़ देती है, तब्दील कर देती है। तो एक वक्त आएगा अंग्रेज़ी भी ख़त्म हो जाएगी, अरबी ही रहेगी आखिर में सबसे ज़्यादा। लेकिन ये एक तवील ज़माने तक ये किताब काम की रहेगी इंशाअल्लाह। मैं आखिर में फिर मुबारकबाद देता हूँ हबीब रियाज़ को इस काम के करने पर, और जिस चीज़ से वो जुड़े हुए हैं उसकी कामयाबी के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Now I am delighted to welcome Sheikh Rahman Madani to join us on the stage, and please grace us with your valuable insights. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. सदर मजलिस प्रोफेसर नसीम अख्तर साहब, स्टेज पर मौजूद दीगर प्रोफेसरान, उलमाए किराम और बिलखुसूस हमारे सनाबिली इख़वान, यहाँ पर मैं खुसूसियत के साथ आप हजरात को मुखातब करने पर मजबूर भी हूँ, और चाहे इसको मेरा तअस्सुब कहा जाए, इस बात की सराहत भी करने को अपने लिए बाइसे मसर्रत समझता हूँ, क्योंकि मुझको खुशी है कि मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने 1980 में जो पौधा लगाया था, जो जोगाबाई की बंजर सरजमीन पर 4 किराए के कमरों से शुरू किया गया था, आज उसके समरात इस मरकज़ी यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक में उसके नताइज और उसके बेहतर नताइज देखने में मिलते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम है, और ये हकीकत है कि इंसान इस दुनिया में जो भी कारनामा करता है, बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी ही में उसके नताइज देख लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम है कि वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ एक नस्ल नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठाने और कामयाबी हासिल करने वाली 3 नस्लें देखीं, और उस पर उनको बेहद मसरत और ख़ुशी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए इन चीज़ों को सदक़े जारिया बनाए, और हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इस जामिया मिल्लिया से भी उनका एक गहरा ताल्लुक़ रहा है, और जमाअत अहले हदीस का भी गहरा ताल्लुक़ रहा है, इसके उलमा का गहरा ताल्लुक़ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़्ल व करम है कि ये तालीमी मैदान में आगे बढ़ना, ये सब एक दूसरे से मिलजुल करके जब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का एहतराम होता है, एक दूसरे का ताआवुन होता है, एक दूसरे के शाना बशाना चलते हैं, कंधे में कंधा मिला करके चलते हैं, तब ये तालीमी सफ़र आगे बढ़ता है। और ये हकीकत है कि जामिया मिल्लिया इस ओखला के लिए ही नहीं, दिल्ली के लिए, और सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एजाज़ का मकाम है, फ़ख्र का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़लियात को इससे भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका दिया। हमको अपनी अहमियत को समझना चाहिए। मैं यहाँ चंद टूटे फूटे अल्फाज आपके सामने जिक्र करूँगा। बहुत सारे हमारे अहबाब मौजूद हैं। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के एक देरीना दोस्त मुक्तदा हसन अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया सल्फिया में थे।
उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। स्टेज पर बहुत सारे हमारे प्रोफेसरान मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। इन सबको मुखातब करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक छोटे से तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको एक साथ चलने और इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से, मुल्क के तमाम खित्तों से इन जामियात में तलबा आकर के जुड़ते हैं और जुड़ने वाले तलबा कोई किसी बिरादरी का होता है, कोई किसी कौम का होता है, कोई किसी इलाके का, कोई किसी मजहब का, कोई गरीब खानदान का, कोई अमीर खानदान का। तालीम ऐसा मरकज है जो इन इम्तियाजात को ख़त्म करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करती है। और यहां इम्तियाज जो होता है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले जिस इम्तियाज की बुनियाद रख दी, खुतबे हज्जतुल वदा में आपने फरमाया, अला ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। वहां तक़वा की बुनियाद पर गोरों को कालों पर, कारों को गोरों पर या अरबी को अजमी पर किसी फौकियत की कोई बुनियाद नहीं रखी गई। सिर्फ एक बुनियाद थी, वो तक़वा और परहेजगारी थी। इंसान अपने नफ्स को जितना पाकीज़ा बना ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उतना मुकर्रब होगा। यही बुनियाद इन जामियात में तालीम की बुनियाद पर है। यहां तालीम में जो जितना इम्तियाज हासिल कर ले, गरीब घराने का हो, अमीर घराने का हो, किसी मंतिके और किसी इलाके का रहने वाला हो, उसका ताल्लुक किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी तहजीब से हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, यहां इम्तियाज जो है वो इल्म की बुनियाद पर है। और यह इम्तियाज बाकी रहना चाहिए। इसी बुनियाद पर दुनिया कायम है। लिहाजा हमारे वो तलबा जो यहां पर मदारिसे इस्लामिया से फारिग होकर के आते हैं, उनकी जिम्मेदारियां दूसरे तलबा के बिलमुकाबिल दोहरी हैं। इस बात की सराहत मैं करना चाहूंगा। अभी मेरी बातचीत भी कुछ लोगों से हो रही थी। इस बात की सराहत करना इसलिए जरूरी है कि दूसरे लोग आकर के डिग्रियां लेकर के यहां से चले जाते हैं, दुनिया कमाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में या तालीमी इदारों में उनको मुलाजिमत मिल जाती है, तनख्वाहें होती हैं, दुनिया में तरक्की करते हैं, शोहरत कमाते हैं। और यही रास्ता आपने भी मुंतखब किया है, लेकिन साथ में आपकी जिम्मेदारियां उम्मते मुस्लिमा की इस्लामी तरबियत की जिम्मेदारियां भी हैं। और साथ ही आपकी एक जिम्मेदारी मजीद है कि आप मदरसे के इस्लामी माहौल से निकल करके यूनिवर्सिटी के सेकुलर माहौल में आए हैं। यहां हर अंदाज के, हर मजहब के, हर तहजीब के मानने वाले मौजूद हैं। आपकी यह जिम्मेदारी है कि अपने किरदार के जरिए इस्लाम की वो अक्कासी और वो तस्वीर पेश करें कि आप चलते फिरते मुसलमान साबित हो करके दिखाएं कि इस्लाम की सच्ची तस्वीर क्या है। इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती, क्योंकि यह रब्बे कायनात का वादा है। लेकिन खुद मुसलमान इस्लाम से दूरी इख्तियार करके इस्लामी बुनियादों को और इस्लामी तालीमात को नुकसान पहुंचाता है। मदारिसे इस्लामिया के तलबा फरागत के बाद इन यूनिवर्सिटियों से अगर मुंसलिक होते हैं और वो भी वैसे ही जिंदगी गुजारने लगें जैसी जिंदगी दूसरी अक़वाम के लोग गुजारते हैं, तो मैं समझता हूं आप ना आखिरत में जवाब दे पाएंगे और ना आपका इम्तियाज बाकी रहेगा। आप अपने प्रोफेसरों से पूछिए, अपने असातिज़ा से पूछिए, यहां तक कि वो प्रोफेसर्स जो दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले हैं, वो भी आपको इस हैसियत से, कदर की निगाह से देखते होंगे कि यह तालिब इल्म इस्लामी तालीम हासिल करके मदरसे से फारिग होकर के आया है। लिहाजा अपने मकाम को बाकी रखिए, अपनी हैसियत को मजबूत बनाइए। यह आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। अगर आपने नहीं निभाई तो दुनिया भी आपको माफ नहीं करेगी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप जवाबदेह नहीं हो पाएंगे। तो मैं इस मौके से सनाबिली अहबाब को मुखातब करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने 1980 में जो इदारा कायम किया था, 4 किराए के कमरों पर लेकर के चले थे और रब्बे कायनात के फजलो करम से
पूरे हिंदुस्तान में आज उसकी 2 दर्जन के करीब ब्रांचेस काम कर रही हैं। 5000 बच्चे बच्चियां उसमें जेर तालीम और जेर तरबियत हैं। यह रब्बे कायनात का फजलो करम है। वहां से फरागत के बाद इदारे के तय भी आपकी जिम्मेदारियां मजीद अजीम हो जाती हैं कि आप इदारे के लिए खैर खाही के मामलात करें, लोगों के जहनों को साफ करें, बाहर के लोगों को ला करके इदारे से जोड़ें, सिर्फ मुसलमानों को नहीं गैर मुस्लिमों को भी जोड़ें, ताकि इस्लाम की सही और साफ सुथरी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा सके। यह आपकी जिम्मेदारी है। इस वजह से इन मदारिसे इस्लामिया के फारिगीन को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यहां सनाबिली अहबाब के अलावा दूसरे हम मसलक या दूसरे मसालिक के मदारिसे इस्लामिया के फारिगीन भी मौजूद हैं। ये भी हमारे दीनी भाई हैं, ये भी मुस्तकबिल के मेहमार हैं, ये भी मुस्तकबिल के कायदीन हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी बहुत अजीम हैं। आप आपस में इल्मी बुनियादों पर एक दूसरे से इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन इल्मी बुनियादों पर एक दूसरे के साथ चलना यह भी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए। तो मदारिसे इस्लामिया से हमारे असलाफ ने यूनिवर्सिटियों को मुल्हक करने या जोड़ने का जो तरीका इख्तियार किया, जो काविश की, इसमें सबसे बुनियादी मसला यह था कि दीन को सीख करके दुनिया के सामने पेश करने का हुनर इन तलबा को मुख्तलिफ जबानों में आ जाए, मुख्तलिफ कम्युनिटीज में और मुख्तलिफ अंदाज के मजाहिब और तहजीबों को मानने वालों के दरमियान जब ये पहुंचे तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और निभा करके अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, अपने फरीजे को अंजाम दें। यह आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लिहाजा फारिगीन को अपनी दीनी असालत पर बाकी रहना चाहिए। तालिब इल्म की जिंदगी में सबसे बुनियादी उन्सुर उसका तवाज़ो है, उसकी मेहनत व जुस्तजू है। तालिब इल्म की मौत किस दिन होती है? जिस दिन तालिब इल्म यह समझ ले कि मैंने किताब लिख दी, यह समझ ले कि मैंने फना कारनामा कर लिया, यह समझ ले कि मेरे लिए तालियां बजा दी गई, यह समझ ले कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, यह तालिब इल्म की मौत है। यह तरक्की, इस पर हौसला अफजाई इस्लामी तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन तालिब इल्म के अंदर इंकिसारी इससे बढ़नी चाहिए, तवाज़ो बढ़ना चाहिए, मेहनत व जुस्तजू का जज्बा बढ़ना चाहिए। यह तालिब इल्म की बुनियादी जिम्मेदारी है। तलबा की एक जिम्मेदारी यह है कि मुस्बत जहन को, पॉजिटिव सोच को लेकर के आगे बढ़ें, मेल मोहब्बत का पैगाम दें, आपसी हुकूक का ख्याल करें। इस्लाम तन्हा वो मजहब है जिसने भाई के भाई पर, भाई के बहन पर, बच्चों पर माँ बाप के हुकूक, माँ बाप पर बच्चों के हुकूक, यहां तक कि पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, जानवरों के हुकूक, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, यहां तक कि दरिंदे और जहरीले जानवर जो होते हैं, जो हमको डस लें तो हम ताब ना ला करके इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, उनके हुकूक का भी तस्करा किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि मदारिस से जिन हुकूक को आपने सीखा है, हर कम्युनिटी के अंदर इस्लाम की वो अच्छी शबीह पेश करें, उसकी अक्कासी पेश करें। आपकी जिम्मेदारी बहुत अजीम है और मुझको इस बात पर भी फख्र है कि इस प्रोग्राम में हमारे जामिया इस्लामिया सनाबिल के एक फारिग तहसील की इस किताब के दूसरे लेवल का लॉन्च किया जा रहा है। उसकी इजरा अमल में आई है। जिसने यहां पर तारुफ पेश किया अंग्रेजी जबान में, वो तालिब इल्मी जामिया इस्लामिया सनाबिल का फारिग तहसील है। जिसने तिलावत की वो भी सनाबिली फारिग तहसील है। यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी एक बड़ी तादाद का ताल्लुक जामिया इस्लामिया सनाबिल से है। यह रब्बे कायनात का फजलो करम है। लेकिन इस बात को फख्रो मुबाहात के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ये निस्बतें इल्मी निस्बतें हैं, ये निस्बतें मनहजी निस्बतें हैं। इन निस्बतों को तवाज़ो, इनकिसारी और खाकसारी के साथ इस्तेमाल करके इंसान को एक दूसरे के तारुफ के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करने का हक है, फख्रो मुबाहात के लिए हक नहीं है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को समझें
और इस मौके से मैं इस बात का पैगाम भी दे देना चाहता हूं कि इस्लामी दावत, इस्लामी तालीमात या इस्लाम का जो मिशन है, इसको अगर आप माजी बईद से लेकर के अब तक और मुस्तकबिल के खदशात के तनाजुर में अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो इस्लामी दावत और इस्लामी काज को सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज से पहुंचा है, हमारे तलबा को उन चीजों से चौकन्ना रहना है। इस्लाम के नाम पर इस्लाम के माहिरीन ना होने के बावजूद, इस्लामी तालीमात का माहिर ना होने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने इस्लामी ताबीरात के लिए एक कैमरा और एक यूट्यूब का चैनल और टेलीविजन का चैनल बना करके अपने आप को माहिर तालीम या माहिर इस्लामियात साबित करने के लिए दुनिया के सामने पूरे डंके पीटे हैं, लेकिन इस्लाम की सच्ची ताबीरात पेश करने से ये लोग कासिर हैं। हमारे तलबा की जिम्मेदारी है कि इस्लाम को मुअतबर तरीन जराए से हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। इस्लाम इस बात को कभी भी नहीं सराहता है कि आपके पीछे एक भीड़ हो। आप तने तन्हा अगर हक परस्त हैं तो तने तन्हा कुरान मजीद आपको उम्मत करार देता है। लिहाजा आप हक पर कायम रहिए, ऑथेंटिक जराए से इस्लामी तालीमात और इस्लामी बुनियादों की तर्जमानी करना सीखिए। यह आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि प्रोफेसर नदवी साहब हफिज़हुल्लाह ने फरमाया कि एक फोबिया है मदारिसे इस्लामिया के फारिगीन के अंदर कि वो डरते हैं कि हम किसी के सामने अंग्रेजी बोलेंगे तो गलत बोल जाएंगे। आप अपने बचपन की जिंदगी को सामने रखिए। अगर एक दूध पीता बच्चा जिस दिन मां बाप के आगे अब्बा या अम्मा के लफ्ज कहना सीख जाता है, चाहे गलत बोले, उस दिन मां बाप के घरों के अंदर जश्न का माहौल होता है। आपकी जिंदगी मदरसे के मुतवस्सिता के मरहले में सानविया के लिहाज से बचपने की जिंदगी है। आलिया के मरहले में सानविया की जिंदगी बचपन और सीखने की जिंदगी है। आप यूनिवर्सिटी में आ गए तो यहां के उलूम की मुनासिबत से मदारिसे इस्लामिया के बहुत सारे उलूम ऐसे हैं जिसमें आप बचपने की जिंदगी गुजार रहे थे। तो तालिब इल्म अगर सीखने की दौड़ में कमजोर पड़ जाए या फोबिया बैठा करके डरने लगे तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। यह हकीकत है कि हिंदुस्तान के तलबा में पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाएं और बिलखुसूस मदारिसे इस्लामिया के तलबा में अरबी जबान को बोलने के बारे में भी एक फोबिया नजर आता है। वो लिख सकते हैं, तर्जमानी कर सकते हैं, ताबीरात पेश कर सकते हैं, लेकिन बोलने में वो घबराते हैं, जिसके नतीजे में पीछे रह जाते हैं। आप जब बोलेंगे, चाहे गलत बोलें, जब बोलेंगे तो गलती की इस्लाह होगी, जब बोलेंगे तो लोग हौसला अफजाई करेंगे। लिहाजा आप अपने अंदर से हिम्मत अपने अंदर पैदा करें, फोबिया को खत्म करें, एहसासे कमतरी को खत्म करें और खुद एतमादी को खत्म करें। बहुत सारे ऐसे मज़ामीन या बहुत सारी ऐसी तहरीरें नजर से गुजरती हैं जो आजकल के माहौल में लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। खुद एतमादी के नतीजे में न जाने क्या क्या लिख जाते हैं। इसी जामिया मिल्लिया में आप बैठे हैं, यहां बैठ करके आप जामिया मिल्लिया के एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ लिखेंगे तो वो काबिल एतमाद चीज है। लिहाजा आपको अपने अंदर असालत और बुनियादें पेश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए। माजरत चाहूंगा कि दिल के जज्बात थे, बात लंबी हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन जज्बात को समझने, इनकी कदर करने और इनके नताइज को अख्ज़ करके दुनिया में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर रौनक अफरोज़ सदर जलसा मोहतरम जनाब मोहम्मद रहमानी साहब सनाबिली मदनी सदर अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर, डॉक्टर अरकम रईस साहब अमीर जामिया इस्लामिया सनाबिल और प्रोफेसर अरबिक डिपार्टमेंट जनाब अयूब साहब और दीगर हाज़रीन और बिलख़ुसूस जनाब हबीब रियाज साहब, अब बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू मैं नहीं कर पाऊँगा। अलबत्ता चंद बातें हुक्म हुआ है तो हुक्म की पासदारी की वजह से मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ये प्रोग्राम आपने मुनक़िद किया है जनाब हबीब रियाज साहब की इस किताब के इजरा के लिए। ये किताब का दूसरा इसको एडिशन कहूँ या दूसरे मरहले की ये किताब कहूँ या वो हाई स्कूल लेवल की बुक थी, ये इंटरमीडिएट लेवल की बुक है। बहुत ही मुफीद और कारआमद किताबें हैं, ये बुक्स हैं। अगर हम इनको हमारे दूसरे तलबा इनका सही तरीक़े से मुताला करके इनका सही अंदाज़ में इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ी मुफीद साबित होंगी। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया के साथ साथ बहुत ही खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि जो छोटा सा एक पौधा मेरे सामने बहुत छोटी सी शक्ल में एक बच्चा आया था अब से बहुत सारे साल पहले, तो उसकी थोड़ी सी आबियारी मेरे हाथों से भी हुई है। किसी ने पूछा था किसी शख्स से, किसी बूढ़े से कि बूढ़े मियाँ आप इस पौधे को लगा रहे हैं या इसकी आबियारी कर रहे हैं तो आपको इस पौधे के दरख्त होने तक शायद बाकी ना रहें, इसका फल आपको शायद नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे उस चीज़ को, जो जवाब उस बूढ़े ने दिया था कि जो जिन पौधों जिन दरख्तों के फल मैं खा रहा हूँ वो मैंने नहीं लगाए थे, वो मुझसे बड़ों ने लगाए थे। लेकिन इस चीज़ का मुझे फ़ख्र और ख़ुशी है कि वो पौधा जिसकी थोड़ी सी आबियारी मुझसे हुई है उसका फल भी मेरे हाथ में आ गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरी खुशी की। वो फल आ चुका है। मैं यहाँ देख रहा हूँ अक्सरियत जामिया इस्लामिया सनाबिल के तलबा की है। मैं उनको सिर्फ़ दो बात कह कर के रुखसत होता हूँ कि अजीज़ों, यूँ तो इस्लाम को चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, लेकिन आज का दौर आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस कदर चैलेंज का ज़माना है और इन चैलेंजेस का मुकाबला आप अपने अमल और किरदार से ही कर सकते हैं, अपने मामलात और अखलाक से कर सकते हैं। अगर आप वही अखलाक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, वही सहाबा किराम जो जिनको सहाबा किराम को उन्होंने तालीम दी थी, उनकी तरबियत में वो रहे थे, उनका जो अखलाक था उसी अखलाक को आप पेश करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि मामला
बहुत ही ज़्यादा आपके हक़ में हो जाएगा इंशाअल्लाह। गांधी जी ने जब 1947 के बाद हुकूमत बनी थी तो गांधी जी ने अपने उस हुकूमत के वज़रा को इकट्ठा किया था और उनको एक तालीम दी थी, एक बात कही थी कि मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि आप अपने अंदर ऐसी चीज पैदा कीजिए जिसको देख करके लोग खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो क्या चीज है? वो थी आजिज़ी। और उन्होंने ये भी कहा था, शायद हो सकता है, हालांकि हरिजन अखबार का वो कटिंग है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपसे श्री राम और श्री कृष्ण को, उनके अखलाक को या उनके मॉडल को पेश नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो तारीखी चीज़ें नहीं थी, वो तारीखी शख्सियात नहीं थी, बल्कि नावल की शख्सियात थीं। लेकिन मैं उन लोगों की बात आपके सामने पेश करता हूं कि जिनकी हुकूमत सारी दुनिया में आज तक इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हुई नहीं है, उन लोगों की मिसालें पेश कर रहा हूं। वो थे अबू बकर और उमर। लेकिन जब वो कहीं जाते थे तो उनकी गर्दनें झुकी होती थीं, उनका गुलाम उनकी सवारी पर बैठा होता था। तो कहने का मकसद यह है कि आपकी तारीफात गैर मुस्लिमों ने भी की हैं और बहुत से गैर मुस्लिम आपके अखलाक व किरदार से बहुत ज़्यादा कामयाबियों तक, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि इस्लाम कबूल कर रहे हैं, चाहे जितनी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक बात और कहूँगा किताब के सिलसिले में, हालांकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जिनके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है और दूसरी चीज़ें हैं, उनके ज़रिए हम बुक्स को, सारी लाइब्रेरीज़ को उसी के अंदर हम समो लेते हैं। इससे फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोशिश है इन किताबों की जो हम प्रिंट के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं, उनकी इफादियत को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश भी है। इसलिए किताबें ऐसी चीज़ हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये किताबें हमेशा बाकी रहती हैं। कंप्यूटर के एक बहुत बड़े शख्स ने, जो बहुत बड़ा जानकार था कंप्यूटर का, उसने ये बात कही थी कि देखिए ये कंप्यूटर कभी भी, इसमें कोई वायरस आ जाएगा, कोई वायरस छोड़ देगा, ये ख़त्म हो जाएंगे ये सारे कंप्यूटर्स, क्योंकि और जितनी भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, उसकी जगह पर दूसरी चीज़ें आती जा रही हैं, इसी सूरत से ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा इनमें जो कुछ आपने डाला है उसकी हार्ड कॉपी ज़रूर बना के रखिए। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त ज़्यादा शायद ले लिया है मैंने, मैं इसके लिए माज़रत खा हूँ और जितने भी हाज़रीन हैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब हबीब रियाज साहब को और दूसरे उनके रफ़ाक़ा को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now I would like to call here Dr. Akram Rais Madani to share her valuable insights with us. Please welcome Dr. Akram. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास। रईसुल जलसतिल मुअक्कर असातिज़त क़िस्मिल लुग़तिल अरबिय्या बिलजामिअतिल मिल्लिय्या अल इस्लामिय्या बिन्यू दिल्ली व रईस मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद लित्तौइया अल इस्लामिय्या बिन्यू दिल्ली असातिज़तल जामिआ अल मिल्लिय्या अल आखरीन
طلاب الجامعة الملية وخريجي الجامعة الإسلامية سنابل، أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمع الكريم، في البداية أنا أقول لكم أنا محتار في هذا المقام أن أتحدث إليكم باللغة العربية، لأن أخانا الفاضل حبيب رياض السنابلي ينتمي إلى قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية، وكذلك الإخوة الآخرين أساتذة اللغة العربية وقسم اللغة متواجدون متوافرون في هذا الحفل، ومحتار كذلك أن أتحدث إليكم بلغتنا الأم أو باللغة الإنجليزية، لكنني فضلت أن أتحدث إليكم باللغة العربية لأسباب عدة لا أريد أذكرها، لكن السبب الوحيد الذي أريد أن أذكره هنا هو أن مجتمعنا هذا، مجتمع الهند ومجتمعنا في هذه الجامعة المباركة مجتمع مختلط، فنحن من يتحدث العربية، ونحن فينا من يتحدث الأردية، وفينا من يتحدث الإنجليزية واللغات الكثيرة المتواجدة في ربوع الهند المختلفة. فلذلك اعذروني إذا أنا أتحدث باللغة العربية، لأنني أحببت أن أسهم بشيء مما يجلب لنا الفرحة والسرور. في الحقيقة هذه مناسبة عظيمة وجميلة جدا، ومن بواعث السعادة والسرور، وبالنسبة لي خصوصا يعني أنا أعتز بوجودي هنا في هذه الجامعة المباركة العريقة، وكذلك أعتز بجهود أخينا الفاضل حبيب رياض السنابلي الذي قدم جهودا مباركة في تطوير اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتسهيلها للدارسين الجدد، وخاصة في المجتمع الهندي، المجتمع البعيد عن اللغة الإنجليزية ومعارفها وبيئاتها وثقافاتها. فأنا في الحقيقة أول شيء يعني أعبر عن سروري وغبطتي وفرحتي بقيامي هنا بين أيديكم أولا، ثم في هذه المناسبة العظيمة ومناسبة تدشين كتاب أخينا الفاضل. وفي الحقيقة هذه الحفلة نحن نسميها باللغة العربية حفلة التدشين، يعني افتتاح، وحفلة التوقيع، يعني المؤلف هو حينما يهدي كتابه يوقع عليه بتوقيعه الخاص، علشان الذي يستلم الكتاب يعني يعرف ويتذكر دائما أنه استلم الكتاب في مثل هذه المناسبة العظيمة والذكرى الكبيرة. فأبارك لأخينا الفاضل حبيب رياض جهده الكريم وإنجازه العظيم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهده. ولا أريد أن أطيل عليكم، لأنه طبعا الناس تكلموا، والشيخ محمد الرحمن تكلم، والدكتور محمد أيوب الندوي تحدث يعني بمشاعر الاعتزاز والافتخار الكثيرة، فعندي أيضا يعني أشياء كثيرة، لكن طبعا نحن لابد أن نتقيد بالوقت، وأكتفي بهذه الكلمات، وأبارك للأخ الكريم حبيب الرياض جهده المبارك، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وينفع به سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद अयूब ताजुद्दीन नदवी साहब, शेख मोहम्मद रहमानी मदनी साहब, डॉक्टर अरकम रईस मदनी साहब, मास्टर सरवर साहब, डॉक्टर महफूजुर रहमान साहब, हमारे अजीज़ वाहिद साहब, तौसीफ़ुर रहमान साहब, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ख़ान साहब, डॉक्टर औरंगज़ेब आज़मी साहब, और डॉक्टर हैफ़ा शाकरी साहिबा, और बहुत सारे हमारे पुराने जो है तलबा यहाँ पर अलुमनाई यहाँ मौजूद हैं, उन सबको ख़ास तौर से मैं अस्सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम अपने तालिब इल्म
जो एक होनहार तालिब इल्म हैं और जिनको बनाने में यकीनन सनाबिल के असातिज़ा का क्रेडिट उनको जाता है। मुझे नहीं पता कि हबीब रियाज़ ने सनाबिल से पहले कहाँ पढ़ा था। मैंने ऐसा इसलिए कहा, मैं अपनी कहानी जैसे मुख्तसरन बता दूं कि मैंने अपने गांव से शुरू किया, उसका नाम बैतुल उलूम था। उसके बाद 3 दिन एक मदरसे में पढ़ा, उसका नाम चश्मे फैज़ था। उसके बाद 8 साल एक मदरसे में पढ़ा, उसका नाम दारुल मऊ है। उसके बाद वहाँ से 2 साल मदरसतुल इस्लाम में पढ़ा, 4 साल नदवतुल उलमा में, 1 साल जामिया मिलिया इस्लामिया में और 11 साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं अपने नाम के आगे नदवी लगाता हूँ। तो कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि ठीक है, एक नदवी टाइटल तो लगा दिया, लेकिन मुझे बनाने में किसका किसका हाथ है। कहीं मैंने 8 साल पढ़ाया, उसका तो नाम मेरे नाम के आगे नहीं है। कहीं 11 साल मैंने पढ़ाया, उसका तो नाम मैंने अपने नाम के आगे नहीं लगाया। तो क्रेडिट हबीब रियाज़ उन सबको जाता है जिसने आपको बनाया है। वो जो प्राइमरी में आपने पढ़ा है, जिन्होंने आपको लिखना अलिफ बा ता सिखाया था, और ये इंग्लिश का ज़ौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ ये तो हमें नहीं मालूम। जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया आए, यकीनन इससे पहले एक बड़ी मज़बूत बुनियाद थी आपकी, और उस मज़बूत बुनियाद को बनाने में मैं समझता हूँ कि प्राइमरी से लेकर सनाबिल से गुज़रते हुए फिर यहाँ पर ख़ास तौर से फ़र्स्ट ईयर में प्रोफेसर हबीबुल्लाह ख़ान साहब ने जो चंपक खूब पढ़वाया, आपको ट्रांसलेशन की मशक़ कराई। फिर सेकेंड ईयर में हमारे जो है प्रोफेसर अयूब साहब ने, और मैं बदनसीब रहा कि जैसे ही वो ये 3rd ईयर में आए मैं फर्स्ट ईयर में चला गया। तो मैं तो बदनसीब रहा, लेकिन बहरहाल एमए में पढ़ाने का मौका मिला। बहुत होनहार तालिब इल्म हैं। जब से मैं इधर 8-9 महीने हो गए मुझे हेड बने हुए, तो एक जज्बा पैदा हुआ कि ज़रा मैं मालूम करूं कि हमारे यहाँ से जो तलबा फारिग होते हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो एक हमने गूगल फॉर्म बनाया, और हमें अक्टूबर में एक प्रोग्राम करने का इरादा है अलुमनाई का। ये तो काफ़ी एडवांस चल रहे हैं, अभी अलुमनाई नहीं हुए, उसके बाद ही 2-2 किताबें इनकी हमारे सामने हैं। तो हम एक सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे क्या, एक गूगल फॉर्म जो है फॉर्म बनाया कि हमारे अलुमनाई कहाँ कहाँ हैं। उन्होंने आज के 1 महीना पहले जो मैंने उसको प्रिंट आउट लिया, 315 लोगों ने, 315 लोगों का जो मैंने देखा, और अभी वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इधर मुझे मौका नहीं मिला देखने का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा शोबा अरबी, भाई सनाबिल वालों ने तो अपना खूब तस्करा कर दिया, तो मैं अपने शोबे का तस्करा तो करूँगा ना। है या नहीं? मुझे हक़ है या नहीं ये बताइए। भाई उनको पूरा हक़ है। और जब वो सनाबिल के लड़के हमारे, मैं तो कहता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ मदारिस के लोगों से मिलता हूँ, मैंने कहा देखिए ये अरबी पढ़ाना ये किसी की ये जागीर नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उसके लड़के आगे जा रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से उसमें सनाबिल का तज़किरा करता हूँ कि यहाँ से बड़े होनहार तलबा आ रहे हैं और बहुत छाए हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी अरबी। ये किसी की जागीर नहीं रही कि फ़लाँ मदरसा वो अरबी के लिए जाना जाता है और फ़लाँ जाना जाता है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैंने ये जो सर्वे अपना करवाया, सर्वे क्या जो लोगों ने भरा, और अभी ये मुकम्मल नहीं है, ये नाक़िस है। तो पता ये चला कि हमारे यहाँ से फ़ारिग शोबा अरबी के पढ़े हुए तलबा जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं, परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर्स हैं, उनकी तादाद 25 है। और इसमें से 8 वो लोग हैं या तो रिटायर हो गए, ये इनके अलावा 25 के अलावा 8 वो लोग हैं जो या तो रिटायर हो गए हैं या अल्लाह ताला ने अपने यहाँ उन्हें बुला लिया है। और उन सब की मैं समझता हूँ इनमें से अक्सर की जो ये 25 + 8 23 बेहतरीन किताबें इनकी हैं जिनसे लोग इस्तेफ़ादा करते हैं। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर प्रोफेसर वली अख्तर साहब का नाम मुझे इस वक्त याद आ रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी किताबों से हम बहुत इस्तेफ़ादा करते हैं। इसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उम्मीद की जाती है आगे चलकर वो भी इंशाअल्लाह परमानेंट फैकल्टी में बनेंगे। उनकी तादाद तकरीबन 10 या उससे कहीं ज़्यादा है, जो अभी हमें पूरा फिगर नहीं मिला है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस में शोबा अरबी के तलबा जो फारिग यहाँ से हुए हैं वो पढ़ा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 15 बल्कि उससे ज़्यादा हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उस्ताद हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में
हमारे यहाँ के फारिग तलबा की बड़ी तादाद है। मेरे पास 32 लोगों की लिस्ट है, 32 लोगों का नाम है, कहाँ पढ़ाते हैं, क्या है, उनका एड्रेस भी है मेरे पास मौजूद है। प्राइवेट स्कूल्स में एक बड़ी तादाद है, उसमें कुछ यहाँ और कुछ बाहर में भी 2 तरीके के, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हैं और कुछ प्राइवेट हैं। और हम जो प्रोग्राम अक्टूबर में करने जा रहे हैं, हम उसमें ये नहीं करेंगे कि जो सिर्फ सरकारी इदारों में जो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हम उन्हीं को बुलाएंगे, बल्कि असलन हम ये देखेंगे कि चाहे वो कहीं भी हो, किसी मदरसे में क्यों ना हो या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो, देखेंगे कि उसका कंट्रीब्यूशन उस समाज के लिए, मुआशरे के लिए क्या है, और उसको हम यहाँ पर एजाज़ से इंशाअल्लाह नवाजेंगे। हमारा यही टारगेट है। वरना हमने देखा कई जगह क्राइटेरिया ये बनाया गया कि सरकारी मुलाजिम है तो उसको स्टेज पे बैठाया, उसको चादर वगैरह, शाल वगैरह से नवाज दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि एक शख्स जो फला मदरसे में पढ़ा रहा है, सैकड़ों हज़ारों बच्चे उस मदरसे में पढ़ रहे हैं, साहिब तसनीफ़ भी है, उसका तो पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तो इंशाअल्लाह आप हमें हमारे लिए दुआ करें कि हम जो है उन सबको बुला सकें, इस कैंपस में इंशाअल्लाह बुलाएंगे। और एक बड़ी तादाद है जो टीचिंग के अलावा, आपको मालूम होना हमारे यहाँ से 2 फातिहुल तहसील तलबा जो है इस वक्त एम्बेसडर है, एक चाड में जहाँ पे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, और एक सीरिया में जो है इरशाद साहब, और चाड में हिफ्ज़ुर रहमान साहब। ये दोनों हमारे यहाँ से, एक साहब ने जो सीरिया में, वो हमारे यहाँ से PhD हैं, और हिफ्ज़ुर रहमान साहब ने MA किया। ये 2 PhD भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी PhD। तो 2 हजरात यहाँ से एम्बेसडर हैं। इसी तरीके से कुछ लोग NTR में हैं, कुछ लोग हमारे ऐसी सर्विसेज जो हम मिनिस्ट्री की हैं, जिनकी तफासिल मैं नहीं बयान कर रहा हूँ यहाँ पर, उसमें भी हैं। अताउर रहमान साहब माशाल्लाह वो डायरेक्टर हैं इग्नो के। इसी तरीके से और भी दूसरे मैदान में, और मेडिकल टूरिज़म का तो मैं तस्करा ही नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं भी चले जाइए, बड़ी आसानी होती है, ख़ास तौर से प्राइवेट, उसमें कोई हमारा तालिब इल्म मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये किसी के तर्जमा किया और बस वहाँ पर, बल्कि उन्होंने अपना सेटअप कायम कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने अपना सेटअप कायम रखा, वो सिर्फ जो है नौकरी दूसरे की नहीं, बल्कि वो नौकरी दे रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अभी मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब ने जो आपको भूला हुआ दर्स आपको याद दिलाया है, आप उसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो, जैसा कि प्रोफेसर अयूब साहब ने बताया कि दूसरे लोगों का इंप्रेशन हमारे बारे में बहुत अच्छा है। आपकी 2-3 खुसूसियात हैं जिसको मैं कई बार तस्करा कर चुका हूँ, और इसका दूसरे लोग भी एतराफ़ करते हैं। एक बार मेरी ड्यूटी थी इन्विजिलेशन में, एक गैर मुस्लिम खातून, उन्होंने कहा कि मुझे मदरसे वालों का ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, पूरा फुल ड्रेस होता है, डिसिप्लिन इनका बहुत अच्छा होता है। जब इन्विजिलेशन की ड्यूटी होती है तो आराम से बैठ कर ये लिखते हैं, इधर उधर नहीं झांकते, बल्कि हम 3 घंटा बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, इसलिए कि जब बच्चे परेशान कर रहे होते तो हम उसमें बिज़ी होते हैं, तो 3 घंटे गुजर जाते हैं। ये मदरसे वालों के साथ जब ड्यूटी लगती है तो हम थक जाते हैं, 3 घंटा बैठे बैठे हमारा वक्त गुजरता नहीं। ये आपकी खूबी है। एक खूबी आपकी ये भी उन्होंने बयान की, और मैं यहाँ पर शेख मोहम्मद रहमानी साहब से कहूँगा कि बहुत कुछ हम यहाँ आने के बाद यहाँ की रंगीनियों में भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गैर मुस्लिम असातिज़ा का भी इम्प्रेशन ये है कि ये मदारिस के तलबा हमारा बड़ा एहतराम करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि ये अरबी के असातिज़ा हैं जिनको वो सलाम करते हैं, बल्कि सिर्फ पता चल जाता है कि ये उस्ताद यहाँ का, वो दूर से सलाम करते हैं, सलाम। कहिए यहाँ के ये मदारिस के तलबा की ख़ास बात है। एक बार यहाँ पर बात आई थी, चूँकि बहुत सारे लोग मदारिस पे यूँ ही तबसरा कर देते हैं, हाँ ये मदारिस यूँ ही, तो वहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस में हमारे जब बात चल रही थी तो हमारे प्रोफेसर ज़िया साहब थे, कुछ नेगेटिव कमेंट किसी की तरफ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि जब से जामिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर अब तक प्रॉक्टर ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा
किसी भी बड़े क्राइम का इर्तिकाब हमारे किसी मदरसे के लड़के ने नहीं किया है। छोटी मोटी शरारतें तो हो जाती हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने जैसे बात की, देखिए आपका ड्रेस चाहे मदरसे में कुर्ता पजामा था, यहाँ के पैंट शर्ट में बदल गया है, ठीक है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे लोग आपको ये जानते हैं कि ये सनाबिली, ये नदवी, इस्लाही, फलाही, सलफ़ी, हाँ ये हैं, और वो लोग आपकी बूदोबाश को, उठने बैठने को, चलने फिरने को, हर तरीक़े को देख रहे हैं। वो आप आपका ड्रेस चाहे जो भी, उनको पता चल जाता है ये मदरसे का है, और उसको देखते हैं। अगर आपने गलत किया, कहा ये गलत कर रहा है, तो ये याद रखिएगा दुनिया आपको देख रही है। आप दावत दे सकते हैं, आप अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने ये जो बूदोबाश से, अपने चलने फिरने के अंदाज से, अपने खाने उठने बैठने के अंदाज से, आप अपने तरीक़ों से आप दे सकते हैं दावत, ये सबसे अहम है। फिर मैं अब चंद बातें थी, और एक खुसूसियत आपकी है कि आप मेहनती हैं, जो मदरसे ने आपको मेहनत करने का सलीक़ा दिया है, बल्कि आदत डालती है कि किसी भी माहौल में आप एडजस्ट कर जाते हैं। एक छोटे से कमरे में 4 लोगों का रहना, इतनी तंगी की अगर वो करवट बदलता है तो दूसरा उठ जाता है, उसमें भी आप पढ़ लेते हैं। ये उन मदारिस ने आपको ये हुनर दिया है जीने का, इन हालात में भी। और यहाँ पे बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे कि जो बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उन्हीं कलियों को हक़ है लज़्ज़त लुत्फ़े बहारां का, उन्हीं कलियों को हक़ है लज़्ज़त लुत्फ़े बहारां का, जो कलियाँ इब्तिदाए उम्र से कांटों में पलती हैं। और ये बहुत ज़रख़ेज़ मिट्टी है, जैसा कि हबीब रियाज़ की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ दिख रही है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये हीरे जवाहरात हैं, और क्या क्या करेंगे। और मैं ये मानता हूँ जिस वक्त हम थे इस मरहले में, उस वक्त कंपटीशन कम था, इस वक्त कंपटीशन ज़्यादा है, और उसी के हिसाब से इंसान तैयार होता है। जिस वक्त हम ग्रेजुएशन में थे, यकीनन बिला मुबालगा मैं कहूँगा कि हमारी सलाहियत आपकी सलाहियत से कम थी, उस वक्त कंपटीशन इतना नहीं था। तो हमें खुशी है कि आप हमसे आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मौलाना ने जो बात कही और दीगर हजरात ने जो बात कही, उसको बिल्कुल गिरह में बांध लीजिएगा, उस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह तरक्की और आपके कदम चूमेंगे। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ हबीब रियाज़ को। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर कहेंगे कि हबीब रियाज़ एमए कर रहे हैं और उन्होंने किताब लिख दी, बल्कि वो बीए कर रहे थे तभी से लिखना शुरू किया था। तो अब सब लोग कहेंगे कि हम भी यही करेंगे, बीए करेंगे, उसी में किताब भी लिखेंगे, तो मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। अब इनका जज्बा, ये फरते जज्बात में आकर लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल इतनी मालूमात थी, ज़रूरतें थी, ये जाने आपका काम क्या है। अभी जो आपने बीए में एडमिशन लिया है, आपका जो ऑनर्स का पेपर है, आपका जो सबसी है, आपका जो सीबीसीएस है, आपकी जनरल इंग्लिश है, आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, उसमें परफेक्ट होना है, उन असातिज़ा की हिदायत और तालीमात पे चलना है, उसको परफेक्ट करना है, होमवर्क करना है, उसमें परफेक्ट होना है। फिर इसी तरीके से एमए करने के बाद जो सब्जेक्ट हैं, अगर एक उस्ताद तनकीद पढ़ा रहा है, आपने उसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं माना, आपने उसने जो होमवर्क दिया आपने किनारे रखा, और आपकी माशाअल्लाह सलाहियत कुछ ऐसी थी कि 2 दिन पढ़कर आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन आपने कुछ खोया। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सब्र कर लें, आपकी सलाहियतें बहुत हैं माशाअल्लाह, थोड़ा बीए ठीक से कर लें, उनके तकाज़ों को पूरा कर लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पता चला मदरसे में है, वहाँ पे असातिज़ा अरबिक में माहौल है ज़्यादा, इंग्लिश तो अंगुश्ता शशुम की तरह है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंग्लिश सिखाने के बहुत सारे वो हैं, बेहतर होता कि वो मकतब से सिखाया होता। अरबी को क्यों नहीं हमने नर्सरी से सिखाया? ये एक बड़ी बहस है, लंबी चौड़ी इस पे हो सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये एक तो ये गलतियाँ मदारिस से भी हो रही हैं कि नर्सरी से अरबी क्यों नहीं, इंग्लिश वहाँ से क्यों नहीं। लेकिन अब जबकि वो वक्त गुजर चुका है, तो अब तो हबीब रियाज़ की किताब ज़रूरी है। एक बात और कहूँगा, मदरसा एक चीज़ देता है जो सरकारी स्कूल भी नहीं देते। सरकारी स्कूल भी कोई मीडियम नहीं दे पाते। मैं जनरलाइज मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि मदारिस एक मीडियम देते हैं, वो उर्दू मीडियम होता है। वहाँ का बच्चा फारिग होकर उसके पास एक मीडियम होता है एक्सप्रेशन का, वो लिख सकता है, अपनी बातों को एक अच्छे अंदाज से बयान कर सकता है। अब जब दूसरी ज़बान में आता है तो उसको पहले से पता है। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, वो मदरसे में ये लफ्ज़ सुन चुका है।
अब उसको बस अरबी और इंग्लिश में चेंज करना है उसको, इसलिए उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। तो ये भी क्रेडिट मदरसे को जाता है कि आपका एक मीडियम देता है वो। तो मैं अभी कहूँगा ज़रा सब्र करें, सब्रन जमीलन, BA खूब अच्छे ढंग से करें, MA खूब अच्छे ढंग से करें, असाज़ा के उनकी जो बताई हुई चीज़ों पे अमल करें, और उसके बाद तो इंशाअल्लाह फिर तसनीफ़ व तालीफ़ का जो सिलसिला चलेगा, हम आपको बुलाएंगे और जो है एजाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ एक बार फिर तमाम मेहमानों का, तमाम तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Professor Muhammad Ayyub Nadwi, Jamia Millia Islamia, Professor Naseem Akhtar Nadwi, Head of the Department of Arabic, Jamia Millia Islamia, Assistant Professor Mahfuzur Rahman, Advisor of Department Subject Association, Sheikh Muhammad Rahmani Madani, President Abul Kalam Azad Islamic Awakening Center, Master Sarwat Sahib, Head Supervisor Jamia Islamic, Dr. Arkan Rais Madani, Dean Faculty Jamia Islamia Islamic, officers and the other members of university staff, invitees, members of press and the electronic media, dear friends. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this August occasion of book launch ceremony at Jamia Millia Islamia. I am Mohammad Nasir Ahmed on behalf of Subject Association of Arabic Department at Jamia Millia Islamia and the entire fraternity of Arabic Department. I extend my sincere thanks to the Almighty for making today's event a grand success. On behalf of Subject Association, I extend a hearty vote of thanks to our President, Professor Naseem Akhtar, Head Department of Arabic, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in all our future endeavors. I also want to thank our chief guest, Professor Muhammad Ayyub Nadwi, for his active participation in our event. You truly made this day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge had added to the glory of this event. I also want to extend thanks to all the speakers, guests, who have entertained us with their important and worthy opinions. I want to appreciate their efforts for making the event informative for all of us. Dear friends, today we are celebrating the new book launch program. In fact, this book is a very extraordinary addition in literature field. I congratulate my dear friend, Mr. Habib Riaz, student of MA Arabic Jamia Millia Islamia, who played a pivotal role in creating a magnificent way of learning for new generation in modern time. Truly, this book will open horizon of thinking and a new dimensional approach of learning. I humbly request to all of you, please get benefits of this book. I believe this book will change your future and give you new ideas. Now it is time to convey our gratitude to all who had extended their support to make this event successful. Thank you so much. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरा नाम हबीब है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला सिद्धार्थ नगर में एक गांव है डुमरियागंज, वहाँ से है। और मैंने इब्तदाई तालीम अपनी डुमरियागंज के एक मदरसे से हासिल की थी जिसका नाम है मदरसा अबू बकर सिद्दीक़। उसके बाद फिर मैंने जामिया, जब मैं सनाबिल में पढ़ रहा था तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती थी बच्चों को, ख़ास करके इम्तहानात वगैरह में बहुत परेशान हो जाते थे वो। इसकी वजह ये कि बुनियादी तौर पर वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे कि गांव वगैरह से जो आते हैं अक्सर उनकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर होती है। तो चूँकि मैं उनकी हेल्प किया करता था, उनकी मदद किया करता था, तो फिर आगे चल करके मेरे जहन में ख़्याल आया कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। चूँकि मैं उनको पढ़ा चुका था सनाबिल में, तो मुझे आइडिया आया कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मेरे जाने के बाद अगर इनको कोई पढ़ाने वाला ना मिले तो मेरे ज़रिए से वो इसको सीख सकें। तो फिर मैंने जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लिया तो मेरी जानकारी में, मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे इस पर काम करना चाहिए। और इस किताब को मैंने
सिर्फ लिखा ही नहीं है बल्कि इसको मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। आप जो किताब की मदद से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी अपना टारगेट होता है। कुछ इमाम बन जाते हैं फ़ौरन, कुछ जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं, दीगर यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो हर एक का अपना टारगेट है, उसके हिसाब से ही वो चलते हैं। तो मेरा अपना टारगेट था, उसको मैंने किया। For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2.0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness.